اب سنیں، ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص مراد ہے. ابھی میں نے وہ پڑھی نہیں تحریر آپ کو، نہ میں نے کہا، میں اس کو فور آرگومنٹ سے ایک جگہ پہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے اور دوسری جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہیں، تو وضاحت کہاں پہ ہے دو والی میں؟ تو ہم دو والی کو لیں گے. نہیں کیوں نہیں نہ لیں آپ؟ میں بتاتا ہوں حکم کیا ہے آپ کی بات میں. جہاں انہوں نے ایک کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ایک منٹ ٹھہر جائے کمالت بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ کل جو ڈبیٹ رکھی گئی تھی، عامر نذیر نے یہ ثابت کرنا تھا یہ ایک ہے. اچھا، کل اتنی وہ تو کے بعد ادھر جو گئے ہی تحریر سنائی نہیں، انہوں نے، ادھر گئے ہی نہیں بیچارے. اس کے بعد وعدہ، اچھا بات کیا کی آخر میں نے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ تم لوگ دو سمجھتے ہو. اوے بھائی، دعویٰ تم لوگوں کا تھا کہ یہ ایک ہی ہے، یہ تم نے ثابت کرنا ہے. ہم نے جو کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، دعویٰ تمہارا ہے، ثابت کرو کہ یہ ایک ہی ہے. اور کل کیا کیا؟ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی، باقی جو ٹرکوں میں نہیں شعر و شاعری ہوتی وہ پڑھ کے میں نے تو ثابت کرنا تھا، وہ ثابت کر دیا جی آپ لوگ دو مانتے ہیں. دسو یہ دعویٰ تھی. وہ دعویٰ پیش کرو اپنا. تم لوگوں نے دعویٰ کیا تھا عامر نذیر ہلو سنو غور سے، اپنے کان کھولو. تم نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے. یہ پہلے بھی گالیاں دے کر گیا، آپ نے پھر اس کو اٹھا لیا چیک کرنے کے لیے کہ اب گالیوں کی بیماری ہے کہ ختم ہو گئی ہے. گالی کس میں دی؟ ابھی میں نے یہ کہا نا ٹرکوں کی شاعری. یہ بندہ گالیاں دے کر گیا تھا اور آپ نے اس کو نہیں کبھی اٹھا. اب یہ پھر تکرار کر رہا ہے. اس کو پوچھیں تو صحیح نا کہ یہ تمیز کہاں سے سیکھ کر آیا بات. جو بھی حضرت مسیح موعود صاحب نے، جو خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع، آپ کے خلیفہ صاحب کی باتوں میں تضاد ہے، پہلے وہ دور کر کے دکھائیں، پھر مجھ سے دلیل طلب کریں. جو مرضی لکھو، تم لوگوں کے لیے وہ حجت ہی نہیں ہے کتاب. قرآن مجید ہے، ثابت کرو. آپ کے ان تضادات نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ نہیں چھوڑا، وہ کل دیکھ لیا نا، نہیں چھوڑا. کھانے کے قابل نہیں ہو، کہیں دعویٰ پیش کرنے کے قابل نہیں ہو. کل پتہ چل گیا تھا کس کو کیا نہیں دعویٰ پیش کیا، آپ کے پتہ چل گیا تھا. دعویٰ پیش کیا، اس کا سر پیر سے نہیں مل رہا تھا. روک کے دوسری آنکھ سے نہیں مل رہی تھی. ثابت کرنا تھا کہ جماعت احمدیہ صرف شور کرنا ہے. سر میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں انور بھائی اچھا عمر صاحب آپ بھی ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہرے نا، بات کو ختم کرتے ہیں. ججا صاحب یہ اب جی ججا صاحب بات کریں گے. جی ججا صاحب بات کریں گے. بات یہ ہے، میں تھوڑی سی بات کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ بحثوں میں بعد میں جا کر تکرار اور بعد میں کیا کیا بڑھ بڑھ کر اور چیزیں ہو جاتی ہیں. بات یہ ہے یہاں پر جو بحث اٹھی ہے وہ اسم کی ہے، اور اسم کے لحاظ سے وہ پیش گوئی ایک کے لیے ہی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. صفاتی لحاظ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ان کا نام صفتی ایک احمد نام تھا، محمد تھا، ماہی تھا، اور بھی ان کے جو بھی نام بتائے گئے ہیں وہ نام ان کے تھے. نام کے لحاظ سے جو ہے یہ پیش گوئی اسی کے لیے ہے کہ جس کا نام احمد ہے. جس کا نام احمد نہیں ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے. ہاں صفت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے میں بدیت کیے ہوئے. بہت اچھے، اونچی بات سے بات کریں، ذرا اونچی بات سے بات کریں. جس کا نام احمد نہیں ہے اس کے لیے پیشگوئی نہیں ہے. ہاں، جس کا نام احمد نہیں ہے اسم کے لحاظ سے وہ اس کے لیے پیشگوئی نہیں ہے. جس کا نام نہیں ہے، نبی پاک کا نام احمد نہیں تھا تو نبی پاک کے لیے پیشگوئی نہیں ہے. یہی کہا انہوں نے. لحاظ سے کہہ رہے ہیں نبی صاحب، اسم کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں. یہ ہے وہ صفت کے لحاظ سے صفات ہی کہاں ہے؟ ایک منٹ، بٹی صاحب اجازت ہے. عامر نذیر صاحب صفت کہا ہے انہوں نے. ہاں یہ ہے وہ مکتب یاد آپ کے رکھیں. خلیفہ صاحب کا بٹی صاحب اجازت ہے. یہ نہیں ہے وہ ایسے ہی نہ چھوڑی جائے. کچھ بھی آپس میں بولی جا رہے ہیں سارے دوست. بھائی ججا صاحب کو بات مکمل کر لینے دیں. جی اونچی کریں، اونچی آواز میں کریں، ان کو کہیں دوبارہ کریں بات. اچھا جو وہ بات کر رہے ہیں سن لیں. سمجھ نہیں آئی بٹی صاحب، آپ بتا دیں ان کو، شاید ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ جائے. وہ سر جی وہ ہم جو مرضی بتائیں انہوں نے تو اپنی بات کرنی ہے نا. بٹی صاحب I'm sorry، بٹی صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ انہوں نے ثابت کرنا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، انہوں نے ثابت کرنا ہے، وہ ہمارے اوپر چڑھ کے بھٹی ہم صاحب مجھے ثابت کریں گے اجازت بات۔ دیجیے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی، بات ہو گئی جی۔ کمل آتے بھائی کر لیں اچھا بات۔ بھٹی، اچھا ہاں اب میں آپ کو ایک ایسی تحریر سنانے جا رہا ہوں جس کو ہو سکتا ہے کہ میرے محترم عامر نذیر صاحب ویسے ہی رد کر دیں، کیونکہ ان کے لیے وہ شاید حجت نہ ہو، لیکن یہ مجھے یہ بھی بتاتے جائیں ساتھ ساتھ اگر رد کرتے ہیں کہ یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب سے بڑے عالم دین ہیں یا وہ ان سے بڑے عالم دین تھے۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے، یہ کل حوالہ ان کو دکھایا گیا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ ٹائم کی وجہ سے بعض آسپیکٹ کی جو ہے وہ وضاحت نہیں ہو سکی۔ یہ سورۃ الصف ہے جی، اور یہ وہی آیت ہے جس پر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، جس میں اسمہ احمد ہے۔ اس کے ترجمے میں محترم ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں متعلقہ حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام بڑی تعریف والا ہوگا۔ جی شکریہ۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ بڑی تعریف والا ہوگا، یہ نام ہوتا ہے کہ صفت ہوتی ہے؟ یہ نوٹ کر لیں سارے بشمول عامر نذیر صاحب کے، کہ انہوں نے بتانا ہے کہ بڑی تعریف والا جو ہے یہ صفت ہے یا نام ہے۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جرت نہیں کی کہ وہ یہاں پہ اس کا نام احمد ہے لکھیں، پھر وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور ایک بڑی شان والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ بڑی تعریف والا ہوگا۔ دوسری دفعہ نام کی جرت نہیں کی، صفت لکھی۔ اچھا، اب جب بڑی تعریف والا ہوگا اس پہ انہوں نے نشان ڈالا ہے، اور وہ نشان کی نیچے جو تشریح وہ بیان فرماتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ وہ لکھتے ہیں، اس آیت میں احمد کے لفظ پر بڑی بحث ہے۔ کس چیز پر بحث ہے؟ احمد کے لفظ پر، احمد کے نام پر نہیں۔ کون سمجھا؟ کیا لکھ رہے ہیں؟ احمد کے لفظ پر بڑی بحث ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس پیش گوئی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، مگر آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کہ پیش گوئی سے مراد لے رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں لے رہے، کہتے ہیں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پرابلم یہ آ کھڑی ہوئی ہے کہ آپ کا اسم گرامی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا آگے، یہاں بات وہ ختم نہیں کرتے، وہ آگے بھی لکھتے ہیں، وہ رقم تراز ہیں، اور آیت میں اسمہ احمد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ڈائلیما ہے کہ نبی کریم کی ذات بابرکات اعلیٰ صفات کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آیت میں لکھا ہوا ہے اسمہ احمد۔ یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کو چیلنج درپیش آیا ہے۔ اچھا آگے وہ کیا لکھتے ہیں؟ بس اس امر کی تحقیق کرنی یہاں مقصود ہے۔ کس امر کی؟ کہ اسمہ احمد جو ہے اس سے کون مراد ہیں؟ ہماری رائے میں اس بحث کا مدار لفظ احمد کی تحقیق پر ہے۔ پھر نہیں لکھ رہے کہ نام احمد، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری رائے میں اس بحث کا مدار لفظ احمد پر ہے، لفظ احمد کی تحقیق پر ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ نام احمد کی تحقیق پر ہے۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ لاسٹ نیل ان دا کفن، اس جملے میں انہوں نے سارا معاملہ ہی حل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ لفظ، کون سا لفظ؟ احمد۔ کہتے ہیں یہ لفظ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے۔ ڈکشنریوں میں جا کے دیکھیں اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟ اس میں صفت کو۔ باقی میں ایک اور عرض کر کے تو میں رکتا ہوں۔ عامر صاحب یہ بھی آپ کو ایک وہم ہے جو آپ کل بھی وہاں پہ بیان کر رہے تھے کہ جی اسمہ احمد میں اسم ہے اور یہ نام کے لیے آتا ہے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟
इस नहव में पढ़ें, इसम सिफ्त के लिए भी है, उसको भी इसमें सिफ्त कहते हैं, और जो जाती नाम है उसको इसमें जात कहते हैं। मैं कुरान से आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लाहुल अस्माउल हुस्ना। भाई माजरत कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ अब, क्योंकि पहली जो आपने बात की है वो बड़ी अहम बात है जो बयान कर दी है, अब उनको भी मौका दें। ये उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है। वो मैं जो कर रहा हूँ ना बात, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, मौका दें बाद में। सुन ले मेरी बात, सुन ले, क्योंकि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब एक आलिम दीन थे, उनको ये वहम नहीं था कि इसम आ गया है तो इसका मतलब है ये लाजमी नाम है। उन्होंने इस आयत पर गौर किया हुआ था, लाहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के सब अस्माए हुस्ना हैं। अब सब अस्माए हुस्ना हैं, वो सब जो हैं उसमें अल्लाह के अलावा बाकी तो सिफात हैं, उसको भी अल्लाह ताला इसम कह रहा है कुरान शरीफ में। जी अब इस तहरीर पर जो है हमें बताएं कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब तो खुद इसको इसमें तफजील ले रहे हैं और कहते हैं ये लफ्ज जो है इसकी बहस पर ही सारा मदार है इस आयत को समझने का। जी मेरी बात मुकम्मल हुई। अच्छा, बात ये है जो कमल अते भाई आपने बयान किया है ना, एक आपने बात को वाजे किया है जो बात चल रही है। आपने सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की किताब से वाला पढ़ के बात को बहुत अच्छे तरीके से वाजे किया है। अब दूसरी तरफ, क्योंकि हमने तो आपको नहीं कहा था ना कि आप सनाउल्लाह अमृतसरी का पढ़ें, आपने मुनासिब समझा, आपने पढ़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो दोस्त है वो जो भी पढ़ेगा अब उसी तरह जैसे हमने सुना है उसने सुना है, उनको भी पढ़ने दें। ये आप पाबंदी ना लगाएं कि ये इसी बात का वो जवाब दें, क्योंकि असल में बात वाजे कर रहे हैं हम एक दूसरे को। जो हमारा अकीदा है वो दूसरी तरफ वाले उसको जो है वो जटला रहे हैं, हम जो उनका अकीदा है उनका उनके सामने पेश कर रहे हैं। अब इतनी सी दरखास्त है कि अब वो भी कुछ लगा के बैठे हैं, मैंने नहीं पढ़ा क्या है, अब उनको पूरा मौका दें, वो पढ़ें, बात अपनी कर लें। जी अमर नज़ीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पटी साहब। गुजारिश ये है कि हमारे लिए असल में ना ये सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि यहाँ से बाल उठा के ना इनके कोर्ट में फेंक दी जाए और अपनी इन मुतज़ाद तहरीरों से किसी तरह जान छुड़ाई जाए। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि हमारा असूल क्या है। हमारा असूल ये है कि दुनिया में किसी बंदे की बात भी हुज्जत नहीं है, किसी बंदे की बात भी आप पर लाजम नहीं है कि माने, सवाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात। अगर उनकी बात से किसी बंदे की बात टकराती हो या गैर वाज़ेह हो, उठा के परे फेंके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों नाम थे, मोहम्मद भी और अहमद भी। अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने या किसी आलिम दीन ने कोई ऐसी तहरीर लिखी है जो मुबहम है, जिसकी वजाहत दरकार है, और वो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही या बहाम पैदा हो रहा है, उसको उठा के परे कर दें। हकीकत यह है कि वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की ये तहरीर उन्होंने पहले भी पेश की थी और मैंने पहले भी जवाब दिया था कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ये कहना चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मारूफ नाम है वो तो मोहम्मद है, लेकिन यहाँ पर जो अहमद नाम आया है, क्योंकि क्रिश्चियंस अपने लफ्ज़ को, इस लफ्ज़ को अहमद को लेकर एतराज़ करते हैं। आज के क्रिश्चियंस 1920-1930 की ये तहरीर है जो पढ़ के सुना रहे हैं। उस दौर में क्रिश्चियंस कहते हैं कि भाई हमारी इंजील में तो ये नाम अहमद नहीं है, अरबी में जो तर्जुमा है वो भी, या जो दूसरी ज़ुबान में यूनानी ज़ुबान में उसमें भी लफ्ज़ अहमद तो नहीं है। तो उन्होंने उसकी वजाहत की है, असल में ये जो लफ्ज़ अहमद है इसका तर्जुमा है तारीफ़ किया गया। बस इतनी बात है, बहुत तारीफ़ किया गया करके उन्होंने डायरेक्ट उसका तर्जुमा करके लिख दिया है। वरना मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की अगर बात ये दो टोक वो कहें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अहमद नहीं है, हम उठा के परे फेंकेंगे, दीवार से मारेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों जाती नाम हैं। और ये बात मैं आपके मुसलमान से भी साबित कर सकता हूँ कि नबी पाक के दोनों जाती नाम हैं। बहरहाल असल जो नुक्ता है ना वो ये है कि जितनी बहस हुई है वो इस बात पर होती रही है कि हमारा दावा क्लियर है, इनका दावा क्लियर नहीं है, इनके दावे में तजादात हैं, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है। ये कमालात साहब के सामने दोनों बातें रखी गई हैं।
कोई बात दूसरी बात से मिलती नहीं है, इसी वजह से बात आगे बढ़ नहीं सकी। अब सुन लें, जो मैंने स्कैन लगाया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें 2 दावे लिखे हुए हैं। इन दोनों दावों को बावजूद इसके कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं दूसरे मोबाइल से पढ़ के सुना देता हूं। आपके खलीफा साहब कह रहे हैं मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को मुखातब करके कि जो आपका दावा है आप साबित करें, जो मेरा है मेरा दावा मैं साबित करूं। अब सुने उन्होंने क्या बताया है। मेरा दावा यह है कि हजरत मसीह मऊद इस पेशगोई के असल मिस्दाक हैं और आपका नाम अहमद था, मैं इससे साबित करूंगा। आपका दावा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिस्दाक थे और अहमद आपका इसमें जात था, आप इस बात को साबित करें। अगर ये दावा जिस तरह से इनके खलीफा ने यहाँ पर तहरीर किया है, ये 2 दिसंबर 1916 का अल-फजल खबर है जिसकी तहरीर आपके सामने लगी हो। अगर कल इब्ने माजा साहब इस तरह अपना दावा पेश कर देते, मुझसे मेरे दावे की दलील लेते, अपने दावे की खुद दलीलों पर तो बात तब जानी थी, लेकिन इनका दावा ही इस तरह का है जो अपने खलीफा की बात से ही मुतसादम है। नहीं, असल में सिफात के लिहाज से नबी पाक इसके मिस्दाक है, नाम के लिहाज से मिर्जा साहब हैं। थोड़ा सा सच बोला है जजे ने और उसने कहा है कि जिसका नाम अहमद नहीं है वो इस पेशगोई का मिस्दाक नहीं है। यही बात आपके खलीफा साहब ने कही है कि एक ही बंदे की पेशगोई है और वो पेशगोई है नबी अलैहिस्सलाम मिर्जा साहब की, क्योंकि मिर्जा साहब का नाम अहमद है, नबी पाक का नाम अहमद नहीं है, इसलिए नबी पाक इसके मिस्दाक ही नहीं है। नबी पाक हाँ, वो अहमद हैं, सिर्फ ये भी सारी बात बता दिया करें। वो अहमद हैं। रोके ना जज साहब, ऐसे रोके ना, कर लेने दें। आपको पूरा जो है ना पूरी तसल्ली से फिर जवाब दीजिएगा। मैंने बात कर ली, बीच में ना बोलें। जब मैंने बात कर ली, अगर मैंने उसमें खयानत की होगी आप बताना। हाँ, अब मैं वही बात करने लगा, आपका हौसला जवाब दे गया। उन्होंने कहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहमद थे, हम मानते हैं अहमद थे। क्या मतलब? सिफत के लिहाज से अहमद थे, यानी सिफत आप में अहमदियत की पाई जाती थी। ये आपके खलीफा साहब का मौकफ है कि उनका सिफत अहमदियत के एतबार से अगर कोई कहे कि सिफत अहमदियत के लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम इसके मिस्दाक हैं तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन इसके असल मिस्दाक तो वो हैं जिनका नाम अहमद है, क्योंकि ये जो पेशगोई है इसमें ज़ात अहमद के बारे में है। और अब अभी मुझे कमालात साहब दलीलें देने लगे हैं लाहुल अस्माउल हुस्ना की। पहले अपने खलीफा साहब से तो पूछ लें कि ये सिफत के एतबार से है कि नाम के एतबार से पेशगोई है। सूरह सफ की इस आयत में व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये सिफत के लिहाज से कि इसम के लिहाज से? वो कहते हैं कि ये पेशगोई नाम के लिहाज से है। अगर आप ये कह दें कि ये पेशगोई सिफत के लिहाज से है तो आप तो खलीफा साहब से इख्तलाफ कर रहे हैं ना। यहाँ इस इख्तलाफ को कौन दूर करेगा? वो असल में जो आपके खलीफा साहब जोर देते हैं कि इस पेशगोई का असल मिस्दाक, हकीकी मिस्दाक वो हमारे मिर्जा साहब हैं, वो इसलिए जोर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये पेशगोई इसमें ज़ात अहमद नाम के बारे में है, इसमें ज़ात अहमद के बारे में, ना कि सिफ्त ज़ात अहमद के बारे में। तो इसलिए इसके असल मिस्दाक मिर्जा साहब हैं क्योंकि उनका नाम अहमद था, नबी पाक का नाम ही अहमद नहीं था। नबी पाक इस पेशगोई के मुस्ताक नहीं है। और जिस तरह जज ने कहा कि जिसका नाम अहमद नहीं वो इस पेशगोई का मुस्ताक नहीं है, हाँ, उनमें अहमदियत की सिफ्त पाई जाती थी, इस हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन इस पेशगोई का सूरह सफ की इस आयत का मिस्दाक वो मिर्जा साहब है, सिर्फ मिर्जा साहब। ये दावा जो आपके खलीफा साहब का है, ये कोई बंदा अभी दावा पेश करे, मुझसे मेरे दावे की दलील पूछे, अपने दावे की दलील दे, मेरी बात खत्म हो गई। भट्टी साहब, जजा साहब एक मिनट पहले, भट्टी साहब प्लीज। बात ये है कि कल ये बात हुई थी, मियाँ साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी, इब्ने माजा साहब ने भी यही रिक्वेस्ट की थी, जो आज ये फिर ये दावा कर रहा है कि मैं कहता हूँ ये अहमद है, मेरे पास दलीलें हैं लेकिन वो बात नहीं मैं कर सकता। वो दलीलें तो पेश करो। कल 3 दफा पूछा कभी अपना दावा जो किया उसके ऊपर उसके ऊपर आओ, उसके ऊपर आओ, उसके ऊपर आओ। आज आके हमारे खलीफा वक्त ने, हमारे खलीफा वक्त ने, हमारे खलीफा वक्त ने, अभी भी वो ये बात कर रहा है कि भाई मेरे पास दलील है, मैं पेश करूंगा। कब पेश करोगे? अगले साल, 2 साल बाद? वो पेश करो जी। भट्टी साहब इजाजत है? ये कोई जजा साहब बात करना चाहते हैं छोटी सी, वो उसके बाद कमल आते भाई आप कीजिएगा। जजा साहब ने क्या कर बात करनी है? कमल आते भाई आप कीजिएगा, इस पर सारी बात आप कीजिएगा। वो करें, कमल भाई को मौका दें, वो बात करें। जी जी ठीक है, ठीक है। मेरे पास वो पेज है, वो मुझे सामने है, उस पर किसी ने कहा है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतराए खूना निकला। जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं जी, उनकी तहरीर में उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा। भाई यही बात मोहम्मद अली लाहौरी साहब को उन्होंने कहा है कि आप इसमें ज़ात साबित करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर इसमें ज़ात जिक्र है, और मैं साबित करता हूँ कि यहाँ पे मिर्ज़ा साहब का नाम बतौर इसमें ज़ात जो जिक्र है। यहाँ पे ये इनकार नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो सिफात के तौर पर वो इसके मिसदाक नहीं, वो दूसरी जगह पे उन्होंने वजाहत कर दिया। ट्रुथ सीकर ने वो सारी तहरीर पढ़ी हुई है, उनकी तफसीर सगीर मौजूद है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बिला वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिल वास्ता जो है मिर्ज़ा साहब ऐसा। इसके बाद वजाहत की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन क्योंकि उससे मुद्दा जो चाहते हैं, मुफीद मतलब जो बात है वो नहीं निकलती, इसलिए पानी में मदानी डाले रखनी है। तो वो डाले रखें, सुनने वाले खुद फैसला कर लेंगे। अभी इन्होंने कहा और सनाउल अमृतसरी साहब को तो हम यूं भाई मुझे ये नहीं समझ लगती कि अगर सनाउल अमृतसरी साहब आपसे बड़े आलम दीन नहीं हैं तो उनकी जो है बात को क्यों फेंका जाए और आपकी बात को क्यों माना जाए, जबकि आप जो हैं या तो यहाँ पे इकरार करें कि आप सनाउल्लाह अमृतसरी साहब से बड़े आलम। मैं ये नहीं कह रहा हुज्जत है नहीं हुज्जत, ये बात ही नहीं मैं कर रहा, ठीक है। और जो मैंने इस्माल हुस्ना पे आप मेरा मकसद ही नहीं समझे, इसलिए थोड़ा सा अपग्रेड हो, पहले अगले की बात को समझें कि बात क्या हो रही है। मैंने कहा था कि इसम जो है लफ्ज वो नाम के लिए भी आ सकता है, सिफ्त के लिए भी आ सकता है। इस लिहाज से अगर अल्लाह ताला ने इस्महु अहमद बतौर नाम के कहा है वो भी ठीक है, अगर सिफ्त के कहा है वो भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है लहुल अस्माउल हुस्ना। वहां पे अल्लाह ताला जो अपने नामों का जिक्र कर रहा है वो सिफ्त वाले नामों का जिक्र कर रहा है, इसलिए दोनों मतलब यहाँ पे ठीक बनते हैं। जी सनाउल अमृतसरी साहब ने मुबहम बात की है, माशाल्लाह। अगर इसको मुबहम कहते हैं तो फिर वाज़े बात दो, मेरे ख्याल में दुनिया में उसकी तो हम तारीफ ही नहीं कर सकते। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एक मिनट मुझे सिर्फ दे, मैं वो हिस्सा खोल लूँ। वो कुरान शरीफ की तफसीर सुनाई मेरे सामने मौजूद है, मैं सिर्फ वो हिस्सा खोल लूँ। वो क्या लिख रहे हैं ये भी इन्होंने गलत तर्जुमा किया कि जी उन्होंने लिखा है वो तारीफ किया गया, उन्होंने लिखा है तारीफ वाला होगा, ठीक है। वो कहते हैं और एक रसूल की खुशखबरी सुनाता हूं जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम। भाई अगर ये इसमें जात था तो सनाउल अमृतसरी साहब ने इसका सिफाती तर्जुमा किया क्यों है? सनाउल अमृतसरी साहब आपसे ज्यादा आलमे दीन थे, वो कहते हैं इसका नाम बड़ी तारीफ वाला होगा। ये बड़ी तारीफ वाला होगा, ये सिफ्त है या नाम है? और यही बात जो है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सिफाती एतबार से वो अहमद बनते हैं, उनका इसमें सिफ्त जो है वो है इस्महु अहमद, उसमें कोई अरबी या कुरान से नहीं मिलता कि जी इस्महु अहमद बतौर सिफ्त नहीं हम कर सकते। सनाउल अमृतसरी साहब ने किया है। अगर ये सिर्फ इसमें जात के लिए होता तो उन्होंने तर्जुमा क्यों किया था? अब वो तफसीर क्या लिखते हैं, तफसीर में वो लिखते हैं कि इस आयत में अहमद के लफ्ज पर बड़ी बहस है। ये बहस ही हो रही ना, यही बहस मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। उन्होंने ये नहीं लिखा कि इस आयत में अहमद के नाम पर बड़ी बहस है, उन्होंने लिखा है इस आयत में अहमद के लफ्ज पर बड़ी बहस है। क्या बहस है? आगे लिखते हैं इसमें शक नहीं कि इस पेशगोई से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, मगर ये मगर बहुत बड़ा है, आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आयत में इस्महु अहमद आया है। ये फरमाते हैं, उन्होंने कहा आपका मरूफ नाम, कहाँ पे यहाँ लिखा है मरूफ नाम मोहम्मद है? यहाँ पे तो उनको लिखना चाहिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं, हदीस में आए, जैसे आप हमें वो हदीस मुबारका पेश करते हैं। वो कह रहे हैं मगर आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आयत में इस्महु अहमद आया है।
यानी वो इस्महु अहमद को आपका इसमें ग्रामी यानी इसमें ज़ात नहीं तस्लीम कर रहे। आगे वो क्या कहते हैं, बस इस अमर की तहकीक करनी यहाँ मकसूद है। सर 10 यानी मिनट इस अमर बाद की 10 मिनट तहकीक, बाद मैं ब्रॉड बंद कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, आज के लिए 10 मिनट मजीद का दोस्त बात कर दूं, ठीक है? मैं फिर बंद ठीक कर है ठीक दूंगा। है, हाँ जी, जज़ाकल्लाह। हमारी राय में इस बहस का मदार लफ्ज़ अहमद की तहकीक पर है। वो तो कहते हैं लफ्ज़ अहमद जो है ना, इसकी तहकीक करनी चाहिए कि इसका मकसद और मतलूब है क्या। वो तहकीक जो है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने अनवार खिलाफत में की है, उनको तो करनी चाहिए थी ना, उन्होंने करके दिखाई है। वो आगे क्या कहते हैं, ये लफ्ज़ इसमें तफजील है। अमर नज़ीर साहब, इसमें तफजील आपको पता है कि क्या होता है, वो इसमें ज़ात नहीं होता। तो आपके अपने आलिम दीन जो हैं वो इसमें तफजील इसको ले रहे हैं और इससे मुराद ये ले रहे हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिफाती तौर पर है। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने दोनों बातों को साबित किया है कि ये अगर इसमें ज़ाती के तौर पर आए तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम मिस्दाक बनते हैं, और अगर इसमें सिफाती के तौर पर आए तो फिर इसके लिए हमारे सैयद व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। और वो क्यों अव्वल मिस्दाक हैं, उसकी उन्होंने तौजीह दी है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिर्फ नाम का अहमद होना उसमें कोई फजीलत नहीं, जबकि अहमद की सिफात ना पाई जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्योंकि सिफात पाई जाती हैं, वो अव्वल व औला हैं। जी, मेरी बात मुकम्मल हुई। भाई मेरा सिर्फ एक लाइन का सवाल है, पट्टी साहब अगर जवाब ले दें। आपके खलीफा साहब ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इनकार क्यों किया है कि नबी पाक इस पेशगोई के मिस्दाक नहीं है, मिर्जा साहब हैं, इसकी वजह क्या है, ये बताने, इस सवाल का जवाब दे दो। चले, इतना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर नज़ीर साहब का कि जब इनको दूसरी दफ़ा समझाया गया तो इनको काफ़ी सारी समझ आ गई। और अब सिर्फ ये है कि भाई उन्होंने तो इनकार किया ही नहीं। मैं इनकार जो साबित चाहे करता हूं। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, उन्होंने तो मैं इसमें इनका ज़ात के इनकार तौर दिखा दूं। पर, भाई अब आपने जवाब लेना है कि टोकना है। नहीं, आपने कहा है कि उन्होंने इनकार नहीं किया, मैं कहता हूं उन्होंने इनकार किया है। हाँ, मैं हमारी तफहीम में नहीं किया, आपकी में किया होगा। मैंने मैं जो बात बयान करना दिखाऊंगा मुझे साहब, बोलने उन्होंने दो। कहा है। और भाई आपने जो कल साबित किया ना 2 घंटे में, हमने पूरी वो सुनी है, और आप जो अभी तक कर रहे हैं वो भी सब सुन रहे हैं। वही मैं ठीक कह है, रहा हूं ना कि बात आपने ये है, इतनी लंबी जो बात की है, एक सवाल पूछा बस हो गई आपकी। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आप टोके जा रहे हैं, टोके जा रहे हैं, टोके जा रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं बहस हो गई है। मैं कहता हूं इसी बात पे फैसला कर अच्छा, लेते हैं ना, मैं सबूत देता हूं। आमिर नज़ीर साहब ऐसे करें, आप एक इबारत लिख के ना तो मुझे भिजवा दें, भट्टी साहब के जरिए मैं वो पढ़ देता हूँ। मैंने वो 6 सवाल आपकी लिखे, मत- उनके जवाब पढ़ दें। ऊपर वो सवाल सारे लिखे हुए सवालों के जवाब हो गए हैं, कल ही हो गए थे। ये तो आपकी एक, मेरा मतलब है कि हम इसको लिख क्या के कहें दे कि दें। आपकी ये आदत लिख के है। दे दें वो जवाब। सुन लेना, अब अगर टोकते जाएंगे तो बात नहीं होगी। कमाल साहब, मैंने सिर्फ एक सवाल किया है कि इसको फैसल तो उसका ठहरा जवाब देने देना मुझे। अगर मैं इनकार साबित कर दूं आपके खलीफा साहब का, तो क्या बात खत्म हो इनकार जाएगी। साबित करें? तो उन्होंने भाई नबी जब पाक ने एक इनकार जगह किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे ज्यादा बात हुई है उसको हम, जहां पे कम बात हुई है उसके अंडर समझेंगे। ज्यादा बात में वो कह रहे हैं कि इसमें जात के तौर पर बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम मुराद हैं, और इसमें सिफ्त के तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। और सिफ्त का होना असल बात है, सिर्फ नाम का होना असल बात नहीं। अब अगर कहीं पे उन्होंने जो है उस, मेरी बात तो सुने ना। नहीं, आपने करना है, मुझे बात करने दे, ठीक है? अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, भाई कमाल साहब, अपना टाइम तो चेक करें, कितनी देर से आप खुद बोल रहे हैं। कहा, आपने खुद फरमाया कि एक लाइन का सवाल है, जवाब दे दे। जवाब देने लगता हूँ, आप टोक देते हैं। भाई मैंने कहा कि इस बात को जिसका आप इनकार करें, इसको इस पे फैसला कर लेते हैं। क्या फैसला करना है? मैं सबूत दूंगा कि आपके खलीफा साहब ने नबी पाक का इनकार किया है कि वो इस पेशगोई के मिस्ताक नहीं। उन्होंने दूसरी जगह पे इकरार किया हुआ है, अपनी तफसीर में इकरार किया हुआ है।
तो हम उसके अंदर इसको समझेंगे। भाई कहीं भी इनकार नहीं है, कहीं भी नहीं। दिखाओ आप ऐसे ही जेब से डाली जानी बातें तो ये ठीक नहीं है। पूछे इससे, बोले कि हवाला लाएं। देखे एक जगह पे है, देखे बात चीजें होती है। देखे कर लेते हैं आप हवाला दिया, हम भी हवाला कर लगा। हाँ मुझसे हवाला मांगे। भाई जो पहले अभी जो ट्रूथ सीकर ने पढ़ी है बात, उसमें हवाला मौजूद है। वही तो सारी बात है, उसमें वाज़े बताया है कि इसम जो है उसकी कोई बात नहीं होती, असल में जो कीमत होती है उसके अमल की कीमत होती है। अमल की कीमत लिखा है वहां पे कि सिर्फ नाम नेक रखने से कोई नेक नहीं होता। मेरी बात एक होती है असूली बात कि भाई इसम को कई दफा हम सिफत के तौर पर ले लेते हैं, ये होती है असूली बात। लेकिन जो मुअय्यन बात है ना वो ये है कि वो कहते हैं कि इस आयत का मिस्ताक मिर्जा साहब हैं, नबी अलैहिस्सलाम नहीं है। अगर मैं ये दिखा दूं तो झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए ना। एक मिनट पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दिल मान रहा है कि बात सच है। कह रहे हैं इसम बाज़ दफा सिफात के लिए, ये कल इस पर जोर दे रहे थे कि इसमो हु है। मैं आपके खलीफा की बात कोट कर रहा हूँ। बात तो सुने ना मेरी जान, और मेरी जान जादूगरियां हमारा सब बात तो आपके मुंह से निकल ही नहीं रही, जुबान आपकी साथ ही नहीं दे रही। इस बात आपकी क्या सुने? अकबर जुबान आपकी लड़खड़ा रही है। आप कहते हैं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ हाँ, जहाँ में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। हम तो अल्लाह के फजल से बात कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। आप हैं जो हमारी बातें जोर और जबरदस्ती बंद कराते हैं। आपकी सारी जमात डूबी हुई है, कोई निकला ही नहीं ऊपर, सामने नहीं आ रहा। बात तो सुने ना, अगले अब ताने मैंने पे आ गया तो शाह साहब फिर बांदी कर दें ब्राड इनकी तरफ से, ना ही समझे। अब दलाइल खत्म है, औरतों वाले ताने मेरे शुरू है। कमाल साहब एक बंदे जी फरमाएं, मेरी बात सुने ना, वो कह रहे हैं कि एक ही बंदे की पेशगोई है, वो मिर्जा साहब हैं, दूसरा कोई नहीं है। नबी पाक की पेशगोई के मिजाज नहीं, सुन तो लेना, सुन तो ले मोहतरम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना होते तो मसीह मऊद अहमद कैसे हो सकते? यार सारे ना बोलो, एक बंदर बोलन दो ना। इतनी सीधी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि इस पेशगोई के मिस्ताक नहीं है। वजह यह है कि उनका नाम अहमद नहीं है और यहाँ पेशगोई अहमद नाम की है। इस पे फैसला होना चाहिए कि इसके साथ रगड़ना है। और सिफत तो है ना नबी पाक की, सिफत तो है ना नबी पाक की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना थे, बल्कि वो जरूर थे। ये भाई अहमद उनकी सिफत के लिहाज से वो कहते थे ना, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब कौन देगा? यही ठीक है, यही बात ठीक है, इसमें कोई शक है? हाँ तो पेशगोई किसके बारे में? सिफत बारे में, नाम के बारे में? हाँ, जो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शाने हैं, दोनों ही शाने अहमदी और सवाल ये है पेशगोई नाम के बारे में, सिफत के बारे में है? पेशगोई असल में जो नाम होता है दोनों के बारे में फंस गए, अच्छे आप तो फंस जाते हो। पेशगोई नाम के बारे में है, बात कर रहे हैं आप। अहमद है, सिर्फ तो अहमद नहीं है। वहाँ पर ये बताया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, चलो कोई इल्मी बात इन्होंने यही तो आप अपने खलीफा से इख्तिलाफ कर रहे हैं। ठहर जे इसी बात पर आपका खलीफा से इख्तिलाफ चल रहा है जो कल से आप दूर नहीं कर पा रहे। और इतनी देर से आप दीवार से मार रहे हैं साउला अमृतसरी साहब को, बात तो करने देना। कमाला साहब इतनी देर से आप बोल रहे हैं, आप दूसरे को भी बोलने तो देना, दूसरे की भी बात सुन लें। आपने इतनी लंबी बातें की हैं, चले आप बोल ले, मैं खामोश। यही पड़ी हुई है। और यार एक मिनट आपसे एक सवाल कर रहे हैं, लेते हैं तो मुझे मौका देना बाद में एक सवाल करने। यार मुझे बात हाँ कर लेना, मुझे बात कर लेना। मैं ये कह रहा हूँ कल से जो मुसीबत आपके गले में पड़ी हुई है वो ये है कि आपका तजाद, आपका इख्तलाफ अपने खलीफा से दूर नहीं हो रहा। अगर ये दूर हो जाए, मैंने अब आपको उनका दावा भी सामने लगा दिया है, ये उनका दावा है। अगर आप ये दावा करें खत्म हो जाएगा झगड़ा, दलाइल देंगे दोनों वाला। आप ये दावा क्यों नहीं करते जो वो करते हैं? आप क्यों ये सिफात के चक्कर में पड़ते हैं? उन्होंने सिफात के लिहाज से भी लिखा है, फलान जगह ऐसे भी लिखा है।
وہ سیدھا سیدھا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پیش گوئی میں مولوی محمد علی لاہوری کو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ نبی پاک اس کے مصداق ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مرزا صاحب اس کے مصداق ہے، جھگڑا ختم ہو جائے، آپ اپنے دلائل دیں، میں اپنے دلائل دیں۔ جو وہ دعویٰ مولوی محمد علی لاہوری کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں عامر نذیر کے خلاف کرتے؟ بس یہ سوال ہے، ایک ہی بندے کی پیش گوئی ہے، وہ مرزا صاحب کی ہے۔ اچھا اب خاموش ہو جائے، میں جواب دیتا ہوں آپ کو، خاموش رہیں جب بھائی آپ بھی خاموش ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے مرزا صاحب مصداق ہیں اور آپ ثابت کرو نبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نام احمد مرزا صاحب کے لیے ہے اور آپ ثابت کریں کہ اس میں ذات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے۔ یہ دو الگ باتیں ہیں، ایسے ہی آپ دونوں کو گڑمڑ کر رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اپنی جب دوسری جگہ پہ کتاب میں وضاحت کر دی، اپنی تفسیر میں وضاحت کر دی کہ بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بالواسطہ مسیح موعود علیہ السلام، تو بتائیں کہ اس میں کوئی باقی بات رہ جاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہاں اسمہ احمد آیا ہے، صفتہ احمد نہیں آیا۔ عامر صاحب میں نے آپ کو 2-3 دفعہ بتائی بات، آپ سمجھے نہیں، آپ اس کو اپ گریڈ کریں اپنے آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اسم جو ہے وہ صفت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وہ اسم ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی میں نے قرآن سے آپ کو مثال دی ہے۔ اسمہ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہاں پہ جو اسماء الحسنہ ہے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے اور باقی صفات ہیں، یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، تو کیا ہے نبی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے جو صفاتی نام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسم کہا ہے۔ اس میں اسمہ احمد میں اسم ذات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے لیے اسمہ احمد آیا ہے، اور اگر اس کو اسمہ احمد بطور صفات کے لیں جیسے کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بتایا ہے، کیوں تو لیں؟ اس کے صفات کے بعد بولے کیوں لیں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے خود لیا ہے، مرزا بشیر الدین نے اپنی کتاب میں اور اپنی تفسیر میں، اس لیے مرزا لیں۔ بشیر الدین محمد نے کہا ہے ایک بندہ اس کا مصداق ہے، اس آیت کا مصداق ایک بندہ ہے، اس سے زیادہ نہیں کر رہے ہے۔ ہیں، وہ اس میں ذات کے طور پر کہتے ہیں۔ یار کسی ایک بات کو فیصل ٹھہرا لیں۔ میں نے پڑھ لیا ہے عامر صاحب، غور میں نے وہ پڑھ لی ہے بات آپ کی۔ کمالہ صاحب میری بات سنیں نا، جی جو جی دعویٰ انہوں نے کیا ہے یہ دعویٰ مولانا محمد علی لاہوری کو انعامی رقم رکھ کے کہا کہ میرا یہ دعویٰ ہے، سن لیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود اس پیش گوئی کے اصل مصداق ہیں۔ آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کیوں پیڑ پڑتی ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ مجھے سنیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ انہوں نے انوار خلافت میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، اور اسی کتاب میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے محمد علی صاحب کو کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اسم ذات احمد تھا، تو جب وہ اصل کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسم ذات کے طور پر اس کے مصداق جو ہیں وہ بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام ہیں، اور دوسری جگہ وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ صفات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صفات کے اعتبار سے ہونا اصل فضیلت ہے۔ میری بات سنیں، اس میں ذات نہیں، اگر صفات کے لحاظ سے فضیلت ہے تو اصل مصداق تو صفات والا ہونا چاہیے نا، اصل مصداق تو کہتے ہیں مرزا صاحب ہیں۔ ہم تو وہ دوسرے انہوں نے لکھا نا تفسیر صغیر میں کہ بالواسطہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا واسطہ، اور بالواسطہ مرزا صاحب ہیں۔ بھائی بل واسطہ اور بلا واسطہ انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہوتا ہے نا جو ڈائریکٹ ہو، سن تو ہے نا، اور دوسرے کو بات کرنے دیں نا۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، لیکن اصل اور حقیقی مصداق جو کہتے ہیں مرزا صاحب ہیں، کیونکہ نام تو مرزا صاحب کا احمد ہے۔ کیونکہ وہ اس میں ذات کے طور پر مرزا صاحب کو لیتے ہیں اور صفات کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں۔ اچھا آپ مانتے ہیں کہ اصل اور حقیقی مصداق مرزا صاحب ہیں اس پیش گوئی کے؟ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ دونوں ہیں، دونوں ہیں۔ اصل اور حقیقی مصداق کون ہے؟ اصل اور حقیقی مصداق نام کے اعتبار سے جو نام ذات ہے اس کے اعتبار سے بانی جماعت احمدیہ ہے، اور اس میں صفات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بولو ججا چپ کر جا، اصل اور حقیقی مصداق کون ہے؟
इस आयत का असल और हकीकी मिसदाक कौन है? बड़े इसका सवाल जवाब कर लिए दे। थे, बड़े हमने जवाब दे दिए अभी। अपने लफ्जों के साथ नहीं नहीं, कोई लड़ रहे हैं। आपको क्योंकि हम मुतमिन नहीं मिर्जा कर साहब को बीच में सकते। घुसेड़ना अब हम है। सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। कुरान करीम की इस आयत में सिर्फ एक ही बंदे की पेशगोई है, सवाल ये है और वो कि आपके खलीफा साहब ने कहा है मोहम्मद कि मिर्जा साहब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि सीधी सीधी वसल्लम बात है। जो दावा 5000 उस जमाने कर रहे थे, ये मेरा दावा है। आपको ये दावा करते हुए कौन सी कलांज की पीड़ पड़ी है कल शाम को? क्यों नहीं ये दावा करते? जो हम पूछ रहे हैं वो ना कल किया ना अभी कर सकते हो। आमर नजीर साहब हमारे सवाल का जवाब दे दें, मेहरबानी करें। इतना भी तो देते हैं जवाब। मैं ये कहता हूँ ये दावा अगर कर देते कल आप या आज कर दे ऊपर भी तो कर आगे दें। दलाल शुरू हो। नहीं दलाइल को छोड़ें, हमारे सवाल का जवाब दे दें। दो टोक सवाल असल और हकीकी मिसदाक इस पेश गोई का आप असल और मिसदाक मिर्जा साहब हैं। देंगे या जाएंगे आप? बोलो मुंह से, मुखर आया हुआ है, जबान पे छाले निकले हुए हैं, बोलो ये लफ्ज आप असल और जाएंगे हकीकी या हमारे मिसदाक सवाल का मिर्जा जवाब साहब हैं। देंगे? बस हो गई। एक मैं सवाल कहता हूँ पूछने मिर्जा की साहब के इजाजत नहीं जो है इस आपके बंदे खलीफा के साहब के सामने, अल्फाज और हैं, ये सारा दोहराएंगे दिन कि आकर नहीं? के हमारे ऊपर लागू गुफाफ और करते क्या हैं। क्या हो जाएगी? मुझे मिर्जा साहब के ये 30 अल्फाज मिनट नहीं दे दो, दोहराते। सेकंड दे दो, फिर मैं खामोश हो रहा हूँ। 40 साल उनकी 40 मैं साल कह रहा हूँ मौत का क्या हो जाएगी? आप लोग उसमें उनका अपने नाम खलीफा क्या के था? अल्फाज आप दोहरा नहीं सकते। वो नाम बताएं। के अल्फाज ये हैं असल और हकीकी मिसदाक अच्छा मिर्जा आमर साहब साहब एक हैं। मिनट ठहरे, मरते मर जाओगे, ये बात मान से नहीं लाओगे। हाँ, ये एक मुसीबत है मिनट आपके जजा लिए। भाई, एक मिनट फिर आप दोहराइएगा। हाँ, ये एक खलीफा मिनट के जजा अल्फाज भाई, में नहीं वो जाते। बंदा सामने आए जजा जो भाई, अपने इसके खलीफा बाद के आप अल्फाज बढ़िएगा। मेरे सामने दोहराए। आमर साहब, बात यह है, हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि आप अवामुन्नास को धोखा देने के लिए इस तरह की जज्बाती बातें करते हैं ताकि अवामुन्नास में इश्तियाल पैदा हो। भाई, मैंने अल्फाज लेकिन लिखे अब ये ये जैसे कोई बात नहीं हाँ, है। हाँ, माला एक साहब, मिनट ये ठहरे, बात मैंने लिखी है। हाँ, हाँ, इश्तिहार मैं दिला रहा हूँ। अल्फाज क्योंकि आपके आप पूरा खलीफा नहीं ने ना लिखे, पढ़ रहे, इश्तिहार मैं दिला रहा हूँ। आप पूरा नहीं पढ़ रहे ना। आज पूरा जजा भाई वो पढ़े, पूरा जरा वो अल्फाज पढ़े। मोहम्मद अली लाहौरी को लिख हाँ, के आप दिया, खामोश वो हो के पढ़े। सुने। मैं वो कहता हूँ कि सुनने जरा। उन्होंने मेरी बात सुने। हाँ, मेरी वो जजा गुजारिश भाई सुने। पढ़ेंगे, आप खामोश जो होके सुनेंगे। उन्होंने नहीं कमाला सुनेंगे साहब, वो कान ये पक जाते अखबार हैं। जो मैंने लगाई हुई है, इससे पूरा दावा पढ़ के सुना दे उनका। पक जाएंगे उनके ना, कान पक जाएंगे, इसलिए नहीं सुनना चाहते। मैंने वो पढ़ा है ना, उसमें हम इसमें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस दावे को पूरा पढ़ें। जो स्कैन आपके सामने लगा हुआ है ना, इसको पूरा पढ़ के दिखाएं। ये पूरा पड़ा है पूरा दावा, पूरा दावा। सच में आपके खलीफा का पूरा दावा ये है, सुन तो लेना, आपके खलीफा साहब का पूरा दावा क्या है? जो बंदा दावे के साथ खयानत करता है वो खाइन है, वो बददियानत है। छत्र जबानी उनका दावा पूरा पढ़ें। हमारी भी सुन लें, वो अपनी भी पढ़ा कर है, लें। पढ़ा है। हमारी भी सुने, क्या अपनी भी क्या कर पढ़ा लें। है? वो कहते हैं असल मिसदाक और हकीकी मिसदाक मिर्जा साहब हैं। लाएं जुबान पे ये लफ्ज। ये सुने है ना, ये वो लोग, कहते हैं कि आप भी कह दें ये लफ्ज एक दफा मेरे सामने। ये अपने रस्ता खलीफा सवाल साहब के की लफ्ज जा रही अपनी है। जुबान से दोहरा के दिखा दें कि असल और हकीकी मिसदाक मिर्जा साहब हैं। कह दें, मैं आपका दावा मान लूंगा। आमर के नजीर साहब, लिहाज से आप जो है ना, रोना डालने से बड़े बता दिया आपको। इसलिए अब हमारे आपके पास खलीफा के अल्फाज आप जुबान से दोहरा नहीं सकते। दोहरा दिया वो हमने, पढ़ने लगे हैं, सुने खामोशी दोहराओ। से, वो पढ़ने लगे हैं। दोहराओ एक दफा कहो, हमारा ये दावा है कि इस आयत के असल और हकीकी मिसदाक मिर्जा साहब हैं। ना सुनोगे तो तभी है ना, दोहरा देते हैं। सुनेंगे तो पता चलेगा ना असल दावा क्या हाँ। है। वो रोना फरमाते डालने से हैं तो नहीं ना पता कि चलेगा। मोहम्मद जी जजा भाई पढ़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अहमद भी हैं और वो मोहम्मद हैं। ओ भाई, असल और हकीकी मिसदाक कौन है? बस ये बताना आपने, इधर उधर की बात ना करें। वो मोहम्मद भी हैं, अहमद भी हैं, सिफत ये है, नाम ये, सिंपल बोलें। इस आयत की पेश गोई के असल मिसदाक और हकीकी मिसदाक कौन है? इस पेशगोई के मिसदाक के वही हैं सुने, जिनका नाम अपने अहमद अल्फाज है। दूसरों के मुंह में न डाले। जजा भाई जो पढ़े। जाती बिल्कुल मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये आपके खलीफा के अल्फाज हैं कि असल और हकीकी मिसदाक हमारे मसीह मऊद हैं। इस नाम गला के ना ना ज्यादा फाड़े, खामोशी से सुने। आप नाम पढ़े के जजा आप भाई। 3 बंदे शोर कर रहे हैं। नहीं ना, इस कोई नाम नहीं, आधा तीन आधा है, घंटा आप बोलते हैं। कान बाज रहे हैं, मैं बात एक कर मिनट रहा हूँ तो अहमद जजा नजीर भाई साहब से तीसरा कुछ कौन है? मिनट दें। मैं सिर्फ इतनी बात कह नाम रहा की हूँ मिसदाक कि है ना। आप ये लफ्ज दोहरा दें। मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, अपने खलीफा के ये लिखे हुए लफ्ज दोहरा दें। इस नाम के असल मिसदाक जो हैं वो कौन है? आप बोलें आगे।
बोले 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 मौत क्यों पड़ती है? बोलो आगे। बोले ना जो आप अपनी जुबान से कहलवाना चाहते हैं, अपनी जुबान से बोलने साथ। असल और हकीकी मिज़दाक इस आयत की पेशगोई का कौन है? इस आयत में जो इसमें अहमद आया है, इसमें न छाड़ दो, इसमें न तो सिफ्तन छाड़ दो। असल मिज़दाक इस पेशगोई का कौन है? बस इसम के ऊपर हो रही है ना भाई। और भाई इस पेशगोई का असल और हकीकी मिज़दाक कौन है, ये आपने बताना है। ये इसम मर के जाओगे ऊपर जुबान से, है। ये लफ्ज नहीं दोहरा सकते अपने खलीफा के। सारी बहस ही इसम के ऊपर आप ताने मैंने पे आ गए हैं आमिर साहब। ये नहीं, ये लफ्ज आप दोहरा ही नहीं सकते कमाला साहब। वो जो पढ़ रहे हैं, देखें आमिर साहब, आपको अब शराफत का ये तकाजा है कि आप खामोश होके ना जो वो पढ़ रहे हैं उनको सुने, ठीक है? मैं सिर्फ इतना, मेरी बात सुने, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, अपने खलीफा के अल्फाज दोहरा दें, उसके बाद जो मर्जी करें। वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना होते तो मसीह मौद हाँ, वो बातें पढ़े। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अल्फाज मैंने पढ़ के सुनाए हैं ना, मुझे एक दफा रिकॉर्डिंग करा दें। एक दफा कोई बंदा अपने खलीफा के अल्फाज पढ़ के रिकॉर्डिंग करा दे मुझे। अच्छा तो भट्टी साहब तुसी स्क्रीन वड्डी करे हो तो मैं पढ़ना तो वड्डी करा तो पढ़ के सुनाओ। सस्ती शोहरत और अवाम को जज्बाती करने के लिए आप सारी बातें कर रहे हैं। असल आपका मुद्दा इल्मी बहस करना ही नहीं है। वो पीछे आप लोग भाग रहे हैं, आप लोग अपने खलीफा की बात से और उनके मौक़िफ़ से भाग रहे हैं। इसलिए ये हाल है कि आप कह रहे थे कि इसमहु अहमद आया है, सिफ्तहु अहमद नहीं आया। आपको इतना नहीं पता कि सिफ्त को भी इसम कहते हैं। इल्मी आपकी हालत ये है। सिफ्त को भी इसम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसम अहमद है, सिफ्त तो अहमद नहीं है ना। अहमद में जो है उस इसम जो है सिफ्त के लिए भी आता है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात समझने के लिए ना खुद को अपग्रेड करें जो मैं बात कर रहा हूँ। कमाला साहब आपकी, मैंने कहा कि जुबान लड़खड़ा रही है आपको क्या सुना, और आपके लिए अपग्रेड किसी ने क्या करना है? अच्छा जज्जा पढ़ के सुना, बड़ी स्क्रीन करे भट्टी साहब, जज्जा रिकॉर्ड कराएगा अल्फाज, अपने खलीफा के अल्फाज पढ़ के रिकॉर्ड करा दो। मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ, इसको स्क्रीन बड़ी करें भट्टी साहब। अगर ये दो दावे लिखे हुए हैं, एक मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का दावा है, वो भी पढ़ के सुनाए, एक आपके खलीफा साहब का दावा, वो भी पढ़ के सुनाए। मोहम्मद अली लाहौरी का भी पढ़ लेंगे और खलीफा की बात पढ़ लेंगे, दोनों ही पढ़ लेंगे। वो चूरन बेचने वालों का स्पीकर लेके, तो आप जज्जा नहीं कोई नहीं, कमाला साहब आप तीनों का शोर मुझसे ज्यादा है, आप दो तीन बंदों का शोर मुझसे ज्यादा है। तीसरा कौन है? अच्छा अब तो दो क्यों बोलते हैं, एक बंदा बोले ना, बड़े करें। और आपकी तो गिनती गलत हो गई है, दो को तीन की। इस ब्राड का कोई मॉडरेटर है तो वो बड़ा करे, वो पढ़ के सुनाएंगे। ये जज्जा साहब रिकॉर्डिंग कराएंगे। आप बात करें, मुझे लिख रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद थे और जरूर अहमद थे। बाकी इंशाल्लाह गिरेगी बात। जज़ाकल्लाह। आगे वो रिकॉर्डिंग कराओ, लफ्ज़ां दी खलीफा के लफ्ज पढ़ने हैं, सिर्फ खलीफा के लफ्ज हैं, ये लफ्ज रिकॉर्ड कर लें। वो लिखते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद थे और जरूर वो अहमद थे। नहीं ये नहीं मैं आख्या, मैं अखबार जेडी लाई मैं पूछना पिया। नहीं अखबार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦਾਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਤਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਬੇਤਬਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਫਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਤਵੀਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, दावा क्या लिखे है भाई, मुनाजरा करने वास्ते। जज्जा मेरी बात सुने, ऐसा ना करें, दावा वहाँ पर ही लिखा है, जो बात हुई है वहाँ पर ही हुई है, बाद में वो खबरों में कहाँ पर हुई है, अनवार खिलाफत जो उन्होंने लिखी है। नहीं अनवार खिलाफत जब लिखी थी, सुन तो लो ना भाई, जब अनवार खिलाफत, अगले की अनवार खिलाफत के बाद मौलवी मोहम्मद अली ने एतराज किया है। आप हमारे मुखालिफ हैं, आप जो मर्जी इसको जहाँ मर्जी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो देखें। अगर आप ये समझें और आप कहें कि बात को समझने की कोशिश करें, इसीलिए मैं भट्टी साहब से कह रहा था सीधा आप जंप करें, जो इतराज के बाद दावा आया है, फाइनल दावा। बात सुने, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। आपको पता है कि आपके खलीफा ने इस पर इनाम रखा था, पता है आपको?
मोहम्मद अली लाहौरी जो हैं किस बात पर इनाम रखा था, किस बात पर इनाम रखा था आपके खलीफा ने? मैंने अभी जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ वो सुने। ओ पढ़ के ना सुनाए, बड़ी सुन ली आपकी तहरीरें। इनाम किस बात पर रखा था? इनाम ये रखा था आपके खलीफा ने जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खलीफा ने किस बात पर इनाम मुकर्रर किया था, ये बताएं। इसम पर हाँ दिखाएं, वो कहाँ पर लिखा हुआ इनाम मेरा इस बात पर है। यही तो ये आपको पढ़कर सुनाया 2-3। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं कहता हूं कि आपकी अक्ल क्यों नहीं काम करती है इसमें। ये जो इनाम रखा 5,000 रुपए का और इस पर ये दावा किया, ये वो वाला सफा मैंने लगाया वो अखबार का। इसको पढ़ो। इस आयत में इसम जो है, इसम पट्टी साहब बड़ा करो, पट्टी साहब बड़ा करो, तस्वीर नु जजा पढ़ कर रिकॉर्डिंग कराना चाहता है। इसमहु अहमद जो कहा, मेरा दावा ये है, यहाँ से पढ़ना शुरू कर अपने खलीफा की बात। मेरा दावा ये है कि इस पेशगोई के असल मिस्दाक मसीह मऊद है, हकीकी मिस्दाक मऊद है। ये पढ़ के सुनाओ लोगों को। वो आप लगाएंगे तो फिर वो पढ़कर सुनाएंगे वहां से। पहले कब तक छुपाओगे इन बातों को? क्यों लोगों के सामने झूठ बोलते हो? मोहम्मद अली लाहौरी को जवाब दिया गया और आपको भी जवाब दिया जा रहा है, आप क्यों खामोश नहीं होते? मोहम्मद अली लाहौरी को जो जवाब दिया गया वो जवाब आपने बदल क्यों दिया? वो जो जवाब हम पढ़ कर सुना रहे हैं आपको, उससे आपको तकलीफ क्यों होती है? जवाब यहाँ पर दिया गया है। और जवाब यहाँ पर दिया गया जो मैंने सफा लगाया हुआ है। खोलो 2 दिसंबर 1916 का अखबार अल फजल। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो जवाब ये है। कहाँ से पढ़ने लगे हो? कहाँ से? हाँ वो मैं कहाँ से? अनवारे कहाँ से पढ़ने लगा हूँ? नहीं, अनवारे खिलाफत नहीं पढ़नी। 2 दिसंबर 1916 का अल फजल अखबार पढ़ना है। यार इस बंदे ने चुप करवाओ। इस बंदे 2 दिसंबर 1916 का अल फजल अखबार पढ़ना ही। अनवारे खिलाफत पढ़ ली है। अनवारे खिलाफत क्यों? अनवारे खिलाफत में जो बात गलत लिखी थी उस पर एतराज किया गया। एतराज को दूर करके आपके खलीफा ने एक दावा किया, फाइनल दावा, वो पढ़ के पहले वो गलत बात बताओ हमें। अनवारे खिलाफत में जो लिखी है क्या भाई? अनवारे खिलाफत में गोल मोल जलेबी बनाई थी ना, गोल मोल, यानी मतलब ये। तो फिर उसके बाद मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने जब एतराज किया तो फिर ये फाइनल दावा तो यहाँ किया ना। हाँ नहीं, फाइनल 2 दिसंबर 1916 के अल फजल अखबार में असल दावा यहाँ पे है। जब आप कहते हैं अखबार, ये असल दावा पढ़ के दिखाओ। सबर तो कर लो, मर जाओगे ये दावा नहीं पढ़ोगे। मरते मर जाओगे। खलीफा दावा अपने साथ ही ले गया, कौम पीछे छोड़ गया। कौम को हिम्मत नहीं है कि कौम वो दावा करे जो इनके खलीफा ने किया था। मैं कहता हूँ मेरे लफ्जों में दावा ना करो, अपने खलीफा के लफ्ज दोहरा दो कि ये हमारा दावा है। और कान खोलो, हिम्मत है तो क्यों नहीं ये दावा दोहराते? मसला क्या है? हम दोहराते हैं ना, यहाँ पर बता तो रहे हैं। दोहराओ, ये सफा सामने लगा, दोहराओ इसको। अब आपने बोलना नहीं फिर है, यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से पढ़ोगे, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ आपने बोलना जो है वो बंद कर देना है। अब मैं जो पढ़ूंगा बाद में आपने बोल लेना जो बोलना। जो पढ़ूंगा नहीं, जो नहीं, मेरा दावा ये है। यहाँ से पढ़ो। जो उनको जवाब मिल गया है वो आपके सामने है और हमने रखा हुआ है। मेरा दावा ये है। क्या दावा लिखा हुआ आपके खलीफा ने? हाँ दावा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद थे और जरूर थे। नहीं, ये दावा नहीं है। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। दावा ये है, सुनो दावा, और सुनो दावा जो मैंने सामने लगाया हुआ है। दावा यहाँ मेरा दावा ये है, दावा ये मरते मर जाओगे, मरते मर जाओगे, ये नहीं बोलोगे। मेरा दावा ये है कि हजरत मसीह मऊद, सुनते लेना हो ना, मेरा दावा ये है कि हजरत मसीह मऊद इस पेशगोई के असल मिस्दाक हैं। हाँ मिस्दाक, बिल्कुल इसम के लिहाज से उन्होंने ये असल मिस्दाक। और इसम के लिहाज से कि तू इस पेशगोई के असल मिस्दाक हमारे मसीह मऊद हैं। असल मिस्दाक ये है। उनका जवाब ये है जो खौफ अब आपको आ रहा है, ये है वो शर्मनाक हरकत जो आप करते हैं कि अपने खलीफा की बात को आप जुबान से दोहरा नहीं सकते। ऐसा नहीं करें, और अपने पास से उसमें लफ्ज डालते हैं कि इसम की वजह से, नाम की वजह से, सिफत की वजह से। अमन साहब क्या जो दावा उन्होंने किया वो दावा पढ़ना है आपने। क्या हो गया आपको यार? आप अच्छे खासे आलम बंदे हैं और फिर इस तरह की यार अनवारे खिलाफत पहले नहीं पढ़ी आपने, फिर पढ़नी अनवारे खिलाफत। तो क्यों नहीं पढ़नी? क्यों ना पढ़े हम? क्या हो गया है? और ये किसने पढ़ना? दावा किसने पढ़ना है? इतराज क्या है? ये दावा किसने पढ़ना है? उसके ऊपर जवाब उन्होंने लिख दिया है, आपके सामने जवाब रख दिया। किस पर जवाब दे? हाँ इसमें अहमद पर, इसमें अहमद पर। ओ भाई गल नूं समझण दी जजा कोशिश कर। अनवारे खिलाफत पहले लिखी गई है।
हैं ਓਏ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ केड़ी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੈ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਮਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੌਲੁਲ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद थे और वो जरूर अहमद। ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਅਸਲ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, 500 ਯੂਰੋ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 5000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ दावा साबित करो कि नबी पाक दे मिसदाक ने। मैं दावा करना मेरा ये दावा है। इसम दे मिसदाक ने, उन्होंने इसम दी गल कीती है। ओए इसम उते कोई नहीं है दावे दे विच, तुसी आपको लफ्ज पाने ने। खिलाफत दे विच देखो अमरनजीत साहब सारी इसम दी बहस होई है। यार मेरी गल सुनो, जदों कोई बंदा तुसी एक तहरीर लिखदे हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, आगे से तब भी उसको ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ। ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮੌਕਫ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬਸ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਹੀ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪੜੋ ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਲਾ, जिंदगी है या कोई तूफान है, आखो ना हम तो इस जीने के हाथों मर चले। क्या मुसीबत कर गए खलीफा साहब। खलीफा साहब का दावा है कि मौलवी मुहम्मद अली लाहौरी साहब, मेरा ये दावा है कि इस पेशगोई के असल मिसदाक हजरत मसीह मऊद हैं। आखो वाला एक बारी। हाँ जी, अब सुन ले बात गौर से, जो कि मुस्लिम मऊद ने बात ये फरमाई है। उन्होंने फरमाया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद थे और जरूर अहमद। कई सजे के मारेगा, मर जाएगा। लाश वाली थां कई मार, जिथे लाश है पई उत्थे कई मार। जेडी जिथे लाश है ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਫਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਬਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ al-islam.com ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਮੋ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद थे और जरूर थे। थे लेकिन असल मिज़ाक भाई कोई मसीह मौद ना होता, वो तो असल पता है गल आखी है, निकाल दिया यहाँ पर उन्होंने इस बात को निकाल के रख दिया है। आखिया उन्होंने अर्क निकाल के ना, तो उन्होंने आख्या कि नबी अलैहिस्सलाम अहमद थे, मानता हूं मैं, लेकिन इस पेशगोई के असल मिसदाक मिर्जा साहब थे। शुक्रिया इस्म के लिहाज से, इस्म के लिहाज से तुसी पे पांदे विच नहीं, वो उन्होंने लिखा हुआ है यार इस्म की बात। दावा पढ़ो वाला आयत में भी इस्म ही लिखा है ना, आयत में इस्म लिखा है। दावा मौलवी मुहम्मद अली लाहौरी दे सामने पेश किया तो किथे लिखा है? इस्म के लिहाज लिखा है ना, आयत में भी इस्म अहमद लिखा है। नहीं झूठ नहीं चलेगा, झूठ की में ये आयत झूठी है। फिर इस पेशगोई में इस्मो अहमद वाली आयत झूठी है। असल मिसदाक इस पेशगोई का कौन है? असल मिसदाक मरते मर जाओगे, नहीं बोलोगे मुंह से। हाँ, अभी जो हम बात आपसे पूछ रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं, वो खलीफा भी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना होते तो मसीह मौद कैसे हो सकता था? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਸੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖੋ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ मौलवी मोहम्मद अली दे लाहौरी दे अहमद थे और आप जरूर अहमद थे भाई एदे उत्ते इतराज दा जवाब नहीं दिते। वो अहमद ना होते तो मसीह मौद कैसे अहमद हो सकता है? अहमद यानी सिफाती लिहाज से थे, मतलब सिफत उनकी सिफत ही है अहमद। हाँ है तो मैं मनु